of the revision or booster classes, and in this class we are going to talk about the Vedic civilization. In the previous two classes we have taken note of the prehistoric cultures and the Indus Valley civilization. Now if we take note of the Vedic civilization, this is associated with the people who are known as the Aryas. Now the first issue is, who were the Aryas? So we are going to take note of some general positions and their origin, the issue of chronology. All these things we are going to take note of. What we can say, Aryas and their introduction. In this part we can take note of some minor details related to the Vedic civilization. After talking about Aryas in terms of their introduction, we can take note of the economic life of the Vedic people. Here in economic life, we can talk about the Rig Vedic age and the later phase of the Vedic civilization known as the later Vedic age. As we know, in economy, three major sectors are there. So we can take note of all the three important sectors. Like we can talk about agriculture, we can talk about craft activities, we can talk about their exchange network, and exchange network is nothing but what we can say, trade. In the same way, while talking about the later Vedic people also, we can take note of the agriculture, we can take note of the craft, we can take note of their exchange network, that is changes taking place in their economy in terms of exchange network. That is also trade. We can proceed in a comparative manner. Third thing that we can take note of is the social life. And in social life, we have some interesting facts and details related to a dimension that can be called the Varna system. While talking about Varna system, we can take note of the position in the Rig Vedic time, position in the later Vedic time. Likewise, there is one more dimension related to gender issues that can be translated as status of women. So some facts related to status of women in the same manner that in the Rig Vedic time and in the later Vedic time. Then while talking about the social life, we can also take note of some other details which cannot be covered as part of the previous two themes related to the Varna system and the status of women. Is that clear? Then we can take note of the fourth dimension, and the fourth dimension is something related to political life. And here also we can take note of the Rig Vedic political life, we can take note of the later Vedic political life. Then one more area that we can mention here is cultural. That is anything left after discussing economic, social and political life can be placed as part of the cultural life. Now here two major dimensions are there. The first is religion
religious beliefs and practices. The second is literature. But since we have separated cultural themes, this we are going to discuss later on as part of religious life and as part of literature. For the time being, we can pay attention to, as part of this class, the Aryas and their introduction, economic life, social life, particularly in terms of the Varna system and the status of women, then political life in terms of Rig Vedic time and the later Vedic time. So this is the plan of our revision today regarding the phase of Indian history which is associated with the Aryas. Is that clear? So you can मेरे ख्याल से यहाँ तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना तो हम लोग समझ ही लेते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। पहले के 2 क्लासेस में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का और सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, उनका अध्ययन किया है। अभी हमें वैदिक सभ्यता का अध्ययन करना है और उसमें आर्यों का परिचय प्राप्त करने के बाद उनके आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन हमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक के संदर्भ में करना है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। वैदिक सभ्यता का नाम आप सबने सुना होगा, एंड जैसे ही वैदिक सभ्यता का नाम दिमाग में आता है, कुछ विचार, कुछ संस्थाएं, सम आइडियाज़, सम इंस्टीट्यूशंस, सम नॉर्म्स, सम वैल्यूज़, सम कस्टम्स, सम ट्रेडिशंस come to our mind which are still existing in our culture and civilization, representing something that is known as the cultural continuity of the Indian civilization. भारतीय संस्कृति की निरंतरताओं में अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता का, वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए यहाँ से हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और पहला जो डायमेंशन है उसके तहत हम लोग कुछ माइनर इश्यूज़ की बात करेंगे और फिर आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन की तरफ, जिस क्रम में हम लोगों ने चीज़ों को देखा है, इन द सेम ऑर्डर वी कैन प्रोसीड। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर कोई नई चीज़ आपको बताने का इरादा नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं या आप लोगों ने ऑनलाइन वालों ने तैयारी करते वक्त पढ़ी है। मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद है कि उनको रिवाइज़ करा दें एक अनुशासित या डिसिप्लिन्ड तरीके से, एक टाइम बाउंड मैनर के तहत। ये इन क्लासेस का उद्देश्य है। बहुत गंभीर अगर कोई समस्या हो, एनी सीरियस प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, तो दिस इज़ नॉट टाइम फॉर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। उसके लिए आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इस वक्त आप अपने पीटी का वैल्यूएबल टाइम इस तरह के चीज़ों में या इस तरह के क्वेरीज़ में बर्बाद करें। आप ये मान के चलें कि जो आपने पढ़ लिया, जो आप पढ़ रहे हैं, वही आएगा। एंड दिस इज़ नाउ टाइम फॉर कंसोलिडेशन, नॉट फॉर एक्सपेंशन। तो जो कुछ भी आपने जहाँ कहीं भी पढ़ रखा है, कोशिश कीजिए कि उसको रिवाइज कर सकें। एक्सपेंशन अगर करना हो तो लिमिटेड तौर पे कीजिए, डिसिप्लिन्ड तरीके से कीजिए, और वही कीजिए जहाँ आपको लगता है कि अनटच्ड आस्पेक्ट रह गया है आपकी तैयारी का, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी किसी चीज़ के जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पॉइंट वाइज ही चलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में चीज़ें कवर होती चली जाएंगी कि हु वर द आर्याज। ठीक है, आर्याज की आइडेंटिटी क्या है? कभी कभी इन्हें रेशियल स्टॉक मानते हैं। जर्मनी में हिटलर का नाम सुना होगा आपने, या फिर बहुत दिनों तक आर्याज को एक डिस्टिंक्ट रेशियल कैटेगरी के तौर पे माना जाता रहा, लेकिन वक्त के साथ आर्याज को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है और यह माना जाता है कि आर्याज रिप्रेजेंटेड अ रेशियल स्टॉक, did not represent a racial stock, they represented something that can be called a linguistic group। तो अगर कोई स्टेटमेंट दे कि आर्याज कौन थे, रेशियल स्टॉक को रिफ़र करते हैं या कि लिंग्विस्टिक ग्रुप को, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस विथ कॉमन ओरिजिन।
और इस तरह के एक लैंग्वेज की खोज की गई जिसको कहते हैं इंडो यूरोपियन। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, यूरोप के ग्रीक, लैटिन, मॉडर्न वर्नाकुलर्स। पर्शियन लैंग्वेज इज ऑल्सो part of the Indo-European family. You may be knowing about a Persian text whose name is Zend Avesta. Zend Avesta की सिमिलरिटी ऋग्वेद के साथ देखी जाती है, क्योंकि पर्सिया के साथ अभी हमारा एक कल्चरल कनेक्शन भी है और पर्सिया यानी कि ईरान अभी न्यूज़ में भी है, तो हो सकता हो कि इस कनेक्शन पर सवाल पूछा जा सके। तो और ऋग्वेदा जो कि हमें जानकारी देता है वैदिक लोगों के बारे में, और ज़ेंद अवेस्ता जो कि ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है, इन दोनों में लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। संस्कृत इंडिया में, पर्सियन या फिर जो इंडियन वर्नाकुलर्स हैं, नॉर्थ इंडियन वर्नाकुलर्स, ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली विच इज़ नोन एज द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब इस आइडिया को कि देयर इज़ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन सबसे पहली बार किसने प्रोपाउंड किया था, यह हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो उस आदमी का नाम है सर विलियम जोन्स। ये नाम सुना हुआ होगा आपका। सर विलियम जोन्स वाज वन ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते थे जो कि पूरब यानी कि ओरिएंट के कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन की स्टडी में इंटरेस्ट रखते थे, और ख़ासतौर से जब इंडिया में इंटरेस्ट रखते थे तो उनको इंडोलॉजिस्ट कहा जाता था। तो ही वॉज वन ऑफ द इंडोलॉजिस्ट्स who lived in the second half of the 18th century in Calcutta, and for translation of the Indian classical texts he founded an organization, and that organization still survives and is busy in the same work, that is translating Indian texts into English and other European languages. उसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, उसको कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो दिस पर्सन, ये अपने आप में ही पीटी का क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट, कि हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड विथ व्हाट इंटेंशन। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स, इट वाज फाउंडेड with an intention to translate Indian texts into English and other European languages, and he was one of the Indologists or Orientalists who took interest in the study of Indian culture, and while studying the Indian culture he developed the idea of this family, Indo-European family of languages, Indo-European family of languages। और उसी ने इंडिया में रहने वाले आर्याज के बीच में, उनके डिसेंडेंट्स के बीच में, पर्शियन लोगों के बीच में और यूरोपियन लोगों के बीच में एक कनेक्शन, एक कल्चरल कनेक्ट डेवलप करने की कोशिश की, जिसको बहुत दिनों तक रेशियल माना जाता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे ये एग्रीमेंट हुआ कि यह रेशियल कम है और कल्चरल यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर ज़्यादा है। सो हु वर द आर्याज? दे वर द पीपल who can be identified as linguistic group. Why linguistic group? Because they spoke languages related to Indo-European family. Who developed this idea of Indo-European family? Sir William Jones. Who was Sir William Jones? An Orientalist who founded an organization known as the Asiatic Society of Bengal. Perhaps the year was 1784 जब उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। एक बार आप ईयर कंफर्म कर लीजिएगा, स्पेसिफिक ईयर्स के मामले में हमेशा बेहतर होगा कि आप कंफर्म कर लें, ठीक है ना। 1784। इज दिस क्लियर? अब आइए कि आर्याज चाहे जो भी थे, जिनको वैदिक सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट करके हम लोग देखते हैं, ये इंडिया में कहाँ से आए। देयर इज अ थियरी दैट इज नोन एज द थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। Now that theory has been supplanted by a theory that is known as the theory of Aryan migration. तो ये आर्याज माइग्रेट करके किस इलाके से आए थे, that is very controversial. Now we are going to deal with the issue of, first issue was the issue of identity, कि who were the Aryas. Now we are going to talk about their origin या original home. तो ये अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फील्ड है,
और आम तौर पे सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों से इनको आया हुआ मानते हैं। मेरे ख्याल से ईस्टर्न यूरोप का ऐसा कोई देश नहीं है जिसको किसी न किसी रूप से आर्यन की ओरिजिन के साथ रिलेट नहीं किया गया है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे हंगरी है। जब हिटलर में नाजी या जर्मनी में हिटलर का बोलबाला था, जर्मनी में हिटलर का बोलबाला था और नाजीज का, तो हिटलर ऑल्सो बिलीव्ड इन दी थियरी ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस। और उसने यह माना कि सारे आर्याज जर्मनी से ही बाहर गए हैं और जर्मनी के लोग नॉर्डिक रेस यानी कि आर्याज के सबसे डेवलप्ड लोग हैं और इस दुनिया के रिसोर्सेज पर उनका पहला कंट्रोल है। एक ये भी रीज़न था, जब अल्ट्रा नेशनलिज्म ऑफ द जर्मन पीपल फ्यूल्ड बाय द थियरी ऑफ आर्यन आइडेंटिटी, सुपीरियर आइडेंटिटी, एक ये भी वजह था जिसकी वजह से लोग और हिस्टोरियंस रेशियल कोनोटेशन से बाहर निकलकर लिंग्विस्टिक ओरिजिन या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करने लगे थे। तब पोलैंड हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, अगर आपसे इन जनरल पूछे कि किस एरिया से ये आए थे, तो यू कैन एक्सेप्ट सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जहाँ से बाद के दिनों में भी इंडिया में लोग आते रहे। जैसे पोस्ट मॉरियन टाइम में यू मे हैव हर्ड ऑफ कुशानाज, इंडो ग्रीक्स, नॉट पार्थियंस but particularly the Kushanas and Sakas. Indo-Greeks came from an area to the north of Afghanistan that is known as Bactria. लेकिन सेंट्रल एशिया से माइग्रेशन के ट्रेडिशंस बाद में भी दिखाई देते हैं और बाद के दिनों में मे हैव हर्ड ऑफ हुनाज, गुर्जराज, इनका भी ओरिजिन उसी इलाके से माना जाता है। तो अगर इन जनरल एक्सेप्ट करना हो तो सेंट्रल एशिया वी कैन एक्सेप्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सम एक्सेप्शनल पोजीशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ख़ास तौर से व्हेन दोज एक्सेप्शनल पोजीशंस आर टेकन बाय सम एक्सेप्शनल लीडर्स और स्कॉलर्स। तो बाकी सारी ओपिनियंस को तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन दो ओपिनियंस कुछ लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं जो दोनों लोग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनकी ओपिनियन की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, मेरे ख्याल से आप जान रहे होंगे इनको। वन ऑफ द लाल बाल पाल, वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द अर्ली कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने आर्याज के ऊपर एक किताब भी लिखी है। इनके हिसाब से जो आर्याज आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक रीजन से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, वन ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस, बिलोंगिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस। मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखेंगे कि इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। ये ट्रेडिशनल स्कॉलर थे, किताबें लिखी। एक किताब इन्होंने आर्याज के होम्स के बारे में भी लिखी और किताब का टाइटल भी इसी से मिलता जुलता है, आर्कटिक द होम ऑफ आर्याज, ऐसे कुछ करके है वो। ये वर्ड आर्कटिक और आर्याज के ओरिजिन की बात जहाँ कहीं भी हो तो हम बहुत सेफली मान सकते हैं कि दैट इज़ एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक। फिर हमारे एक और सोशल रिफॉर्मर हुए जिनका नाम बहुत ही मशहूर है, उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के फाउंडर थे। आर्य समाज उन्होंने बनाया था 1875 में बॉम्बे में। सोशल रिफॉर्म करना इनका मकसद था। एंड दिस मैन इज़ पार्टिकुलरली नोन फॉर रेजिंग अ स्लोगन, गो बैक टू द वेदास। ही कंसिडर्ड वेदास टू बी इनफॉलिबल and Vedic civilization to be a model civilization whose ideas and institutions can be imitated without any question. That was his perception. So naturally he was going to talk something about the Aryas, and he did talk about the Aryas, and while talking about them traced the origin of the Aryas to an area that is known as Tibet. So regarding origin of Aryas, our position is that they came from some parts of Central Asia. Exact part cannot be located, cannot be determined, and we have two exceptional Indians with two exceptional positions. The first is Bal Gangadhar Tilak, considering Arctic to be their home. Second is Swami Dayanand Saraswati, considering Tibet to be the original home of the Aryas. Is that clear? So we have dealt with two issues.
First is the Aryan identity and the second is their origin. अब हम उनकी बात करेंगे अराइवल की. अब ये अराइवल जो था, उन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया या कि स्लोली एंड ग्रेजुअली माइग्रेट किया, ये एक मसला है. और इन सब मसलों पर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो वजह बहुत सारी हैं. देयर इज़ नो नीड टू गो इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस, बट ग्रेजुअली वी हैव अबेंडन्ड द थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन and we accept now the theory of Aryan migration, which took the form of what we can say successive waves. उनके अराइवल को हम सक्सेसिव वेव्स के तौर पे देख सकते हैं. ऐसा नहीं था कि सारे आर्याज इकट्ठा हुए, एक साथ मीटिंग किए और इंडिया आ गए, ऐसा नहीं था. उनके अंदर भी डिफरेंसेस थे, उनके अलग अलग ट्राइब्स थे, और अलग अलग ट्राइब लगता है कि अलग अलग वक्त पर इंडिया में आए. और दूसरी ट्राइब के आने से पहले पहली ट्राइब का खासा इंडियनाइजेशन हो चुका था. और जो भी इनके कन्फ्लिक्ट हुए वो सिर्फ यहाँ के जो इंडिजिनस या सो कॉल्ड नॉन आर्यन लोग थे, सिर्फ उनके साथ नहीं हुए, बल्कि आर्याज की जो पहले आ चुकी ट्राइब्स थीं और वो जो इंडिया में सेटल्ड हो चुकी थी, ये कह सकते हैं कि इंडिजिनाइज्ड हो चुकी थी, उनके साथ भी इनके स्ट्रगल होते हैं. इज दैट क्लियर? सो सक्सेसिव वेव्स ऑफ देयर अराइवल, ऐसा माना जाता है कि यह 1500 BC के आसपास शुरू हुआ होगा. ठीक है. इसी दौरान एक ब्रांच पर्सिया की तरफ चली गई या उधर ही रुक गई, और आर्याज की कुछ ब्रांचेस आगे बढ़ती गई और इंडिया की तरफ आईं. सो दिस इज़ अबाउट द नेचर ऑफ देयर अराइवल. तो एक कोई भी स्टेटमेंट ऐसा हो जो आर्याज के इन्वेजन की बात करे और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट रीज़न ना हो, तो आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप ग्रेजुअल माइग्रेशन की थियरी को एक्सेप्ट करेंगे, सक्सेसिव वेव्स को एक्सेप्ट करेंगे. और ये कब चला? 1500 BC से शुरू हुआ, आगे बढ़ता रहा. 1500 BC तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो चुका था. बाय 1800 BC वी कैन से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ declined, and of the many theories of the decline of Indus Valley civilization, one theory is the theory of Aryan invasion. ठीक है ना. अब इस आर्यन इन्वेजन की थियरी को भी आमतौर पे अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए कि इनके आने से पहले ही डिक्लाइन कर चुके थे. सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, उनका अर्बन फेज जा चुका था. हाँ, अगर आर्याज का इंटरेक्शन हुआ होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ डिसेंडेंट्स जो होंगे, जो रह रहे होंगे उस इलाके में, उनके साथ हुआ. और ऐसा लगता है कि इनका इंटरेक्शन नॉन आर्यन लोगों के साथ हुआ, जिसकी चर्चा ये अपने यहाँ करते हैं. ठीक है ना. जैसे 1500 BC के आसपास वी हैव द बिगिनिंग ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ऋग्वेदा. और ऋग्वेदा में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो आर्याज की तरह नहीं थे. ठीक है. ये कौन लोग थे? या हो सकता है कि न्यूलिथिक और चालकुलिथिक कल्चर के लोग थे. वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि व्हेन आर्याज केम टू इंडिया, India was not a barren land. In different parts of the country, we have different groups living at different stages of cultural development, mostly at Neolithic and Chalcolithic stages of cultural development. India had also witnessed growth of an urban civilization before the arrival of the Aryas, that was the Indus Valley civilization. The civilization had declined, but its cultural elements and the descendants of this civilization may have continued in the same area with what we can say their rural aspects. So there is all possibility कि they interacted with the people जिनके बारे में उनके ओपिनियन कुछ इस तरह से थे. उनको लगता था आर्याज के अंदर सुप्रीमेसी का सेंस था, शुरू से ही थोड़ा सा था. तो उन लोगों के बारे में बात कही गई है ऋग्वेदा में. दासाज, दस्यूज, पानीज, इस तरह के लोगों की चर्चा ऋग्वेदा में हुई है. दासाज के बारे में आता है कि सिंस कुछ आर्यन चीफ्स के नाम के साथ भी दासा लगा हुआ है. जैसे एक तो सुदासा है जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे. देखिए दासा लगा हुआ है. दिवोदासा का भी नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, यहाँ भी दासा लगा हुआ है. सो देयर इज अ जनरल ओपिनियन कि दासाज हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा वर बेसिकली
the descendants of some Aryan tribes coming to India and getting settled in India earlier than the main branches. ठीक है ना? क्या रियलिटी थे हमें नहीं पता, लेकिन आर्याज आर जनरली होस्टाइल टुवर्ड्स ऑल दासाज, दस्यूज एंड पानीज, बट लेकिन वो ज़्यादा होस्टाइल हैं किसको लेकर? दस्यूज को लेकर. अगर इनके केस में हॉस्टिलिटी ये है तो इनके केस में हॉस्टिलिटी ये है. और इंद्रा जो कि आर्याज का वार डेटी था, उसको कहा गया है दस्यु हंता, यानी कि स्लेयर ऑफ द दस्यूज, स्लेयर ऑफ द दस्यूज. पानीज की चर्चा हुई है कैटल लिफ्टर्स के तौर पे. ये इनके ना जानवर चुरा ले जाते थे. और इनकी बात करते हुए आर्याज ने कहा है कि दे नाइदर स्पोक देयर लैंग्वेजेस नॉर वर्शिप्ड देयर डेटीज. ये ना तो उनकी भाषा बोलते थे, ना उनकी देवताओं को पूजते थे. और इनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी मिलता है. जैसे आर्याज अपने आप को फेयर एंड टॉल डिस्क्राइब करते हैं, जबकि इन लोगों का डिस्क्रिप्शन हुआ है कि दे वर शॉर्ट हाइटेड, डार्क कम्प्लेक्शन पीपल, फ्लैट नोज्ड पीपल. तो हो सकता हो कि रेसियली भी कुछ अलग लोग रहे हों, जिनके आर्याज के साथ न तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे, ना ही कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिला करते थे. इज दैट क्लियर? अब दस्यु हंता किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है? आर्याज के लिए किया गया है. ये जो थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन है, इसको सपोर्ट इस बात से भी मिलता है कि ऋग वैदिक एज में और ऋग वेदा में इंद्रा को मेंशन किया गया है एज पुरंदर. पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, पूरा. अब ये किनके फोर्ट्स थे जिनको आर्याज ने डिस्ट्रॉय किया होगा? न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक पीपल अपने कल्चरल डेवलपमेंट के इस स्टेज में थे कि वो फोर्ट्स एंड पैलेसेस नहीं बना सकते थे. तो हमारे पास फिर वही लोग रह जाते हैं जिनको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग मानते हैं, जिनके आर्किटेक्चर का फीचर हम लोग बाद में देखेंगे था कि यूजुअली देयर टाउन्स एंड सिटीज़ वर फोर्टिफाइड. तो कुछ लोगों को जो आर्यन इन्वेजन की थियरी को सपोर्ट करते हैं, इस तरह के एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं. पुरंदर है या दस्यु हंता है. अब दस्युओं को या दासास को, पानीस को कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट्स के तौर पे भी देख सकते हैं, या फिर न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक लोग रहे होंगे. बट इन एनी केस आर्याज वर परसीविंग दिस सोशल क्लासेस as distinct from them, and we just talked about the physical and cultural differences which are reflected in the Rig Veda when Aryas have talked about these people whom they found to be different from themselves. ठीक है ना? तो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, इस चीज़ को एक और चीज़ से सपोर्ट मिल जाता है कि ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है एक जगह का जिसका नाम है हरियूपिया. और हरियूपिया की फोनेटिक सिमिलरिटी हड़प्पा के साथ है. सो ऑन दैट बेसिस सम पीपल कंसीडर कि परहैप्स हड़प्पा वाज डिस्ट्रॉयड बाय द सो कॉल्ड वैदिक पीपल और द आर्याज. ये भी आर्यन इन्वेजन की थियरी को मानता है. लेकिन फिर वही कि क्यों हम आर्यन इन्वेजन की थियरी को डिस्कार्ड करते हैं और माइग्रेशन की थियरी को एक्सेप्ट करते हैं, वो इसलिए कि आर्याज के आने से पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो चुका था और इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पोजीशन में नहीं थी कि इस तरह का कुछ रेसिस्टेंस ऑफर कर सके. इसी कॉन्टेक्स्ट में कल हम लोगों ने हॉर्स की बात भी की थी कि हॉर्स इज जनरली एसोसिएटेड विद द आर्याज, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट से एविडेंस हमें मिलते हैं, लेकिन वो एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. लेकिन जो लोग आर्याज को इन्वाइडर बताना चाहते हैं वो उन्हीं एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं कि ये नए लोग थे और इंडस वैली के लोग के लाइफ में एक नया एनिमल लेकर आए थे. और जो लोग मानते हैं कि नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेकर्स आर्याज खुद थे, वो लोग भी उन्हीं एविडेंस को हाईलाइट करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि लुक इन द आईबीसी वी हैव एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड हॉर्सेज आर एसोसिएटेड विद द आर्याज एंड सो द मेकर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द आर्याज. तो ये जो एक कनेक्शन है वैदिक सिविलाइजेशन और ऋग वैदिक सिविलाइजेशन के बीच में, ये कनेक्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है पॉलिटिकली भी. ये सिर्फ एकेडमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी हैव सपोर्टर्स ऑफ द आर्यन ओरिजिन, वी हैव सपोर्टर्स ऑफ द द्रविड़ा ओरिजिन, वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज विथ आर्यन आइडेंटिटीज
We have political parties highlighting the Dravida identities, and that is part of the Indian politics. और कभी कभी हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस पॉलिटिक्स से भी गाइड होता है. इज दैट क्लियर? सो इतना इनके अराइवल के बारे में, इतना ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में कनेक्शन के बारे में, इनके अराइवल के नेचर के बारे में, और उन लोगों के बारे में जिनके बारे में उन्होंने खुद मेंशन किया है, जैसे दासास, दस्यूज एंड पानीज, जिनसे ये मिले थे और अपने से अलग पाया था. इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने 3 इश्यूज हैंडल कर लिए. पहला इशू क्या था? द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या देखा कि आर्याज रिप्रेजेंटेड अ लिंग्विस्टिक ग्रुप. ठीक है. दूसरा क्या था? उनका ओरिजिनल होम, उनका ओरिजिन. यहाँ पर जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? सेंट्रल एशिया विद 2 एक्सेप्शनल व्यूज प्रेजेंटेड बाय 2 एक्सेप्शनल इंडियंस. और थर्ड इशू हम लोगों ने क्या हैंडल किया है? अराइवल ऑफ द आर्याज. इसमें 2 चीज़ों की बात की है, द थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन एंड द थियरी ऑफ आर्यन माइग्रेशन. इज दैट क्लियर? आइए अब चौथा इंपॉर्टेंट इशू है कि फेजेस. वैदिक सिविलाइजेशन के फेजेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं. सो 2 फेज आइडेंटिफाई किए जाते हैं. एक को कहते हैं ऋग्वैदिक, ये बहुत ही कॉमन जानकारी है. दूसरे को कहते हैं लेटर वैदिक. ऋग्वैदिक की जो क्रोनोलॉजी है, फेजेस के साथ साथ हम लोग क्रोनोलॉजी भी कर लेते हैं, उसको माना जाता है कि 1500 बीसी से लेकर अराउंड 600 बीसी, किसी किसी किताब में 500 तक का भी मेंशन होता है. यानी कि बिफोर बुद्धा, बुद्धा का जो टाइम था 6th सेंचुरी बीसी, या कुछ लोगों के हिसाब से 5th सेंचुरी बीसी, उससे पहले तक के इंडियन पीरियड को क्या कहते हैं? वैदिक कहते हैं. सॉरी, ऋग्वैदिक यहाँ तक नहीं आएगा, ये पूरे वैदिक के लिए है. ऋग्वैदिक आएगा 1000 तक. ठीक है ना? 1000 तक आएगा, और फिर 1000 से 600 तक लेटर वैदिक आएगा. ठीक है ना? अगर हम सोर्सेज की बात करें, अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हमारी जानकारी किस तरह की चीज़ों से मिलती है, यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एक चीज़ तो तय है कि ऋग्वैदिक फेज की जानकारी सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स. ठीक है ना? और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, आपको पता है. वी कॉल देम, और भी तरह के सोर्सेज होते हैं, लेकिन 2 मेजर सोर्सेज, वी कॉल देम लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सो इन केस ऑफ द फर्स्ट फेज वी हैव ओनली द literary sources and archaeology is almost silent. माना जाता है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऋग्वैदिक लोगों के नहीं मिलते हैं. लेकिन फिर हिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है. कुछ लोगों का मानना है कि OCP कल्चरल साइट्स जो मिले हैं, OCP एक पॉटरी कल्चर है, इसके साइट्स नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे इलाकों से मिले हैं. इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा ऋग्वैदिक लोगों के साथ. सो आवर जनरल पोजीशन इज कि हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ऋग्वैदिक एज इज सोनली बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेज. इन लिटरेरी सोर्सेज वी हैव द ऋग्वेदा. आर्कोलॉजी इज ऑलमोस्ट साइलेंट, बट इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग in terms of archaeological sources which can be connected with the Vedic Aryas, that is OCP cultural sites. इसको कहते हैं ऑक्रे कलर्ड पॉटरी. आप लोगों ने तैयारी के दौरान इस वर्ड से फेमिलियरिटी ली होगी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी. तो या तो हम किसी को कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कनेक्ट किसी को किया जा सकता है तो कौन लोग हैं? OCP के लोग हैं. और OCP कल्चरल साइट्स के लोगों को कॉपर का यूज़ आता था, और ऋग्वैदिक लोग भी कॉपर के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे. यह भी एक रीज़न बनता है कि OCP कल्चरल साइट्स के लोगों को ऋग्वैदिक लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए. लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ऋग्वैदिक लोगों की जियोग्राफी है, उस इलाके से तो OCP कल्चरल साइट्स मिलते हैं, लेकिन उस इलाके से भी मिलते हैं जहाँ यह माना जाता है कि इन सच एन अर्ली टाइम आर्यन हैबिटेशन नहीं रहा होगा. तो फिर अगर उस इलाके से जहाँ आर्यन हैबिटेशन नहीं रहा होगा, अगर OCP साइट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है
कि ओसीपी का रिलेशन सिर्फ आर्यास से नहीं रहा होगा। हो सकता हो कि कल्चरल डाइवर्सिटी के तहत आर्यास के एरियाज़ में भी वो लोग रहते हों जिनके साथ ओसीपी कनेक्टेड हो, और आर्यास के एरिया से बियॉन्ड भी वो लोग रहते हों, और एक वाइडर कल्चरल जोन के ऊपर ही आर्कोलॉजिकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक कल्चरल फेज के एलिमेंट्स पाए जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिलते नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और एविडेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑकरे कलर्ड पॉटरी के अलावा हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, और भगवानपुरा से एक मड स्ट्रक्चर का एविडेंस मिलता है, मड स्ट्रक्चर, और इसमें ऐसा लगता है कि 13 रूम्स रहे होंगे। इसको हिस्टोरिकल लिटरेचर में 13 रूम्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, भगवानपुरा से। ये हरियाणा में है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये इसका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ ऋग वैदिक लोगों के साथ हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अगेन, दिस आर एक्सेप्शनल पोजीशंस। तो जब तक क्वेश्चन के अंदर आपको कोई इससे बेहतर आंसर ना मिले तब तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर्स की बात होती है, बट मोर करेक्ट आंसर्स की बात हमें करनी होती है। कभी कभी कुछ आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी करेक्ट ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर लेटर वैदिक के सोर्सेज की बात करें तो ऋग्वेदा को हम अर्ली वैदिक लिटरेचर में शामिल करते हैं। यहाँ लेटर वैदिक में अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास लेटर वैदिक लिटरेचर है। इसके बेसिस पर आर्यास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आर्यास के किस फेज के बारे में? लेटर वैदिक फेज के बारे में, दैट इज फ्रॉम 1000 टू 600 BC के बारे में। अब लेटर वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? तो वी हैव रिमेनिंग 3 वेदास, नाम आपको पहले से पता है, जैसे वी हैव सामवेदा, वी हैव यजुर्वेदा, वी हैव अथर्ववेदा। ये तीनों वेद दे आर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक लिटरेचर। इसके अलावा कुछ डेराइवेटिव वर्क्स हैं, जैसे ब्राह्मणास। लिटरेचर में देखेंगे हम लोग कि दे आर रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट्स। देन यू मे हैव हर्ड ऑफ आरण्यकाज, ब्राह्मणाज, ये सिंगल एस है, आरण्यकाज एंड उपनिषद्स। ये 3 ब्राह्मणाज रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट माने जाते हैं, आरण्यकाज मेटाफिजिकल माने जाते हैं, उपनिषद्स फिलोसफिकल माने जाते हैं। दिस 3 डेराइव्ड फ्रॉम द सेम वेदास, लेकिन इनमें वेदास को समझने का, उनके सिग्निफिकेंस को एसर्टन करने का तरीका अलग अलग है। तो लेटर वैदिक सोर्सेज में, लिटरेरी सोर्सेज में सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणाज, आरण्यकाज एंड उपनिषद्स, इनमें जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या मानते हैं? लेटर वैदिक लोगों के साथ जोड़ते हैं, लेटर वैदिक इन ओरिजिन मानते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, या एक स्पेशल चीज़ है जो हम जान सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में बाद में कोई चीज़ जोड़ दी गई हो। तो कुछ लोगों के हिसाब से ये जो हमारा ऋग्वेदा है, जो कि सोल सोर्स है फॉर द ऋग वैदिक, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, इसके कुछ जो चैप्टर्स कह लें या कुछ सेगमेंट्स कह लें, जिनको कि कहते हैं मंडलाज वैदिक टर्मिनोलॉजी में, उनमें से कुछ मंडलाज बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट मंडला, 10th मंडला। तो कुछ लोगों के हिसाब से फर्स्ट मंडला ऑफ द ऋग्वेदा एंड द 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा, दे आर इंटरपोलेशन। तो उनमें जो चीज़ें मिलती हैं, इवन दे कैन बी कनेक्टेड विद द लेटर वैदिक पीपल, इसलिए कि उनकी ओरिजिन लेटर वैदिक लगती है। यानी कि सम पार्ट्स एंड सम मंडलाज ऑफ द ऋग्वेदा कैन ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द कंडीशंस दैट डेवलप्ड इन द लेटर वैदिक फेज।
ये एक्सेप्शनल पोजीशन है. नाउ इफ वी टेक नोट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एसोसिएटेड विथ द पीपल इन द लेटर वैदिक, तो फर्स्ट में हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर फर्स्ट फेज के लिए ऑलमोस्ट साइलेंट, लेकिन सेकंड के साथ ऐसी बात नहीं है. सेकंड में एक पॉटरी कल्चर है जिसको कहते हैं PGW, उसको कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर. पेंटेड ग्रे वेयर के साइट्स नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े इलाके से मिले हैं, जिसमें दोआब भी शामिल है, मिडिल गंगेटिक बेसिन भी शामिल है, ठीक है ना. इसका जो टाइप साइट है वो है अतरंजी खेड़ा. टाइप साइट जैसा कि हम लोग देख चुके हैं वो साइट्स होते हैं जहाँ किसी भी कल्चर के पहले एविडेंस मिलते हैं. और यहाँ से PGW कल्चरल साइट से हमें आयरन भी मिलता है, आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ख़ास तौर से वेपन्स मिलते हैं. और लेटर वैदिक आर्यास के बारे में माना जाता है कि दे वर फेमिलियर विद आयरन, तो यहाँ पर भी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है. और ये भी जानने वाली चीज़ है अलग से कि PGW के साथ ही नॉर्थ इंडिया में पहली बार आयरन का एविडेंस मिलता है. इसलिए इफ़ क्रेडिट टू यूज़ आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ इंडिया कैन बी गिवन टू एनी कल्चर, एनी कम्युनिटी, it can be given to the later Vedic people, because later Vedic people are associated with PGW cultural sites, and PGW cultural sites have produced iron tools and implements, particularly in terms of weapons. ठीक है ना. तो यहाँ हम आर्कोलॉजी को साइलेंट नहीं मानते. PGW कल्चरल साइट से जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उन फाइंडिंग्स को हम लोग लेटर वैदिक सोर्सेज के साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं और फिर लेटर वैदिक कल्चर के कल्चरल ट्रेड्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. इज दैट क्लियर? सो नाउ हाउ मेनी इश्यूज वी हैव डेल्ट विथ? वी टॉक्ड अबाउट द, just for recapitulation, we talked about the identity. We know what was the position. We talked about the origin. You know what was the position. We talked about the arrival and the nature. We know what was the position. We just talked about the phases, and we also talked about the sources for historical reconstruction of both the phases of the ऋग वैदिक टाइम. इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक कंप्लीट की हैं एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी. क्या आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए. ठीक है ना. आइए इनको याद रखिएगा. ये क्या हो गए? फर्स्ट 5 इशूज़ हो गए हमारे लिए. ठीक है ना, माइनर इशूज़ हैं. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द वैदिक जियोग्राफी. यानी कि वैदिक सोर्सेज में कौन सा जियोग्राफिकल एरिया रिफ्लेक्ट होता है, जिनको कि आर्यास के हैबिटेशन के एरिया के तौर पर देखा जा सकता है. तो इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऋग वैदिक एज में ही हमें ऋग वैदिक लिटरेचर में ही एक वर्ड मिलता है जिसको कहते हैं सप्त सैंधवा. ये वर्ड सुना होगा आपने. सप्त सैंधवा का मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 rivers. These 7 rivers are identified with the river Indus and its tributaries, जिनकी चर्चा ऋग्वेद में बार बार होती है. इससे पता चलता है कि जो आज का मॉडर्न पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, वो और फिर इंडिया का वो इलाका जिसमें कि अगर रिवर वाइज देखा जाए, रिवर बेसिन वाइज देखा जाए, तो इसमें द होल पंजाब, वेस्टर्न पंजाब दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न पंजाब दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली एंड एडजेसेंट एरियाज़, राजस्थान का कुछ हिस्सा, नॉर्दर्न राजस्थान का, हिमालयन फुटहिल्स का कुछ इलाका. किसी भी तरह से ये ऐसा लगता है कि गंगा के पार नहीं गए थे. क्योंकि ये इंडस को तो जानते थे, गंगा के बारे में इनकी फेमिलियरिटी बहुत कम है. गंगा का रेफरेंस मिलता है सिर्फ एक बार मिलता है, नेग्लिजिबल है. जिसका मतलब है कि आर्यास की लाइफ में गंगा का वो इम्पोर्टेंस नहीं था इस ज़माने में, ऋग वैदिक ज़माने में, जो इम्पोर्टेंस गंगा का बाद के दिनों में होने वाला था हमारे कल्चर में. हम इस चीज़ को इस बात के एविडेंस के तौर पे लेते हैं कि आर्याज अभी गंगेटिक बेसिन में नहीं पहुंचे थे, अभी ये इंडस बेसिन में ही
कहीं ना कहीं थे, और लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इन 7 रिवर्स में भी कुछ रिवर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। इन 7 रिवर्स में सातों रिवर्स का नाम याद रखने की जीएस में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ रिवर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक रिवर की चर्चा मिलती है, सरस्वती। सरस्वती रिवर बार बार मेंशन है, और सरस्वती रिवर के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, नदीतमा। नदीतमा का मतलब है द बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, यानी कि हमारे लिए अभी जो गंगा का इंपॉर्टेंस है, ऐसा लगता है कि ऋग वैदिक लोगों के लिए सरस्वती का इंपॉर्टेंस था। ये नदी कौन सी नदी है, इसको लेकर हिस्टोरियंस लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए, ठीक है। कुछ लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक नदी है जो आज लगभग ड्राई है, घग्गर हाकरा से, ठीक है ना। और कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं अफगानिस्तान में एक नदी है हरखावती। अभी मैं आपसे पूछूं, अगर क्वेश्चन दे और उसमें हरखावती हो और गगर हाकरा ना हो, तो गो फॉर हरखावती, ये अफगानिस्तान की नदी है। और अगर घग्गर हाकरा हो तो सबको छोड़ के किसको एक्सेप्ट करना है, घग्गर हाकरा को एक्सेप्ट करना है। ये वही नदी है जिसके रिवर बेसिन में सबसे ज़्यादा इंडस साइट्स में मिलते हैं, इसीलिए कुछ लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहना पसंद करते हैं, खासतौर से वो लोग जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कनेक्शन आर्याज के साथ जोड़ते हैं। क्लियर। तो एक नदी ये है सरस्वती, जिसकी चर्चा हम लोग अलग से कर सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऋग वैदिक जियोग्राफी। दूसरी नदी है जिसको हम लोग कहते हैं सतलज नदी, ठीक है ना। सतलज नदी को कहा गया है पुरुषनी, पौ रुशनी। ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। इसकी पहचान की गई है, सतलज नहीं रावी नदी, सतलज नहीं है, रावी नदी है ये। सतलज के लिए शुतुद्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो रावी नदी। अब ये नदी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किस मंडल में, 7वें मंडल में, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 7वें मंडल में एक वार का डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसको कहा गया है द बैटल ऑफ 10 किंग्स। हिंदी में कहा गया है 10 राज्ञ युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। तो अगर आपसे पूछे कि 10 राजाओं का युद्ध, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जो कि जिसका मेंशन ऋग्वेद में मिलता है, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, सो दैट रिवर इज पुरुषनी रिवर, द रिवर विच इज आइडेंटिफाइड विथ रावी। इज दैट क्लियर। नदियों के नाम के साथ एक बार कंफर्म हो लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर कभी देखना हो तो गूगल करके देख लीजिएगा कि वैदिक नेम्स ऑफ द इंडियन रिवर्स, ठीक है, वहाँ पर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगे। वैसे आपको इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नदियों की बात कम कर रहे हैं, हम लोग इस बैटल की बात ज़्यादा करेंगे, इसलिए कि इस बैटल की अपने आप में ही काफ़ी अहमियत है। कहाँ हुआ था ये, रावी नदी के तट पे, ठीक है ना। अब इस लड़ाई में एक खास चीज़ देखने को मिलती है कि वाई दिस बैटल इज इंपॉर्टेंट। तो ये बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिस थ्रोज लाइट ऑन द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द टाइम। जैसे आमतौर पे कन्फ्लिक्ट का नेचर ये माना जाता है कि वी हैव पीपल नोन एज आर्याज हु केम टू इंडिया, केम अक्रॉस द पीपल हु वर नॉन आर्यन इन ओरिजिन, and they were militarily superior, they had superior cultural elements, and on the basis of their military and cultural supremacy, these people came to attack, invade and dominate and even push back these people towards the south, where they are still found in majority. ये एक जनरल सी थियरी है। प्रेजेंट इसको इस तरह से किया जाता है कि ऑल आर्याज एक तरफ, ऑल नॉन आर्याज एक तरफ, और ये लड़ाई एक तरह से रेशियल लड़ाई थी या कल्चरल लड़ाई थी, कन्फ्लिक्ट था।
लेकिन इस लड़ाई से, जो कि ऋग वैदिक एज की सबसे फेमस लड़ाई है, इस लड़ाई से पता चलता है कि नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट वाज नॉट रेशियल और कल्चरल, कल्चरल भी नहीं था ये, बट पॉलिटिकल। कैसे पता चलता है? तो इसमें दो पार्ट्स हैं। एक ट्राइब है, जो कि कौन सी ट्राइब है? भरता ट्राइब है। इसका रूलर है सुदासा। सुदासा इज हेल्प बाय हिज प्रिस्ट हुज नेम इज वशिष्ठा। प्रिस्ट का भी मेंशन मिलता है। और एक अलायंस है ऑफ 10 ट्राइब्स। इसमें कुछ ट्राइब्स तो आर्याज हैं और कुछ ट्राइब्स क्या हैं? नॉन आर्याज हैं। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको जो सपोर्ट करते हैं वो विश्वामित्र हैं, जो कि वशिष्ठ के राइवल माने जाते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ विश्वामित्र की चर्चा अक्सर होती है हमारे कल्चरल लीजेंड्स में। ठीक है, तो नाउ अलायंस वाज सपोर्टेड बाय विश्वामित्र, Sudasa, the chief of the Bharata tribe, supported by Vasishtha, and with the help of Vasishtha, Sudasa defeated this alliance. That is the Battle of 10 Kings. दसराग्य युद्ध, ये उसकी कहानी है। अब मैंने कहा कि इससे नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट पता चलता है। अब आप देखो कि लड़ाई किसके बीच में हो रही है? आर्याज आर्याज के बीच में हो रही है कि नहीं? आर्याज आर फाइटिंग अगेंस्ट आर्याज, नॉन आर्याज आर फाइटिंग अगेंस्ट आर्याज, नॉन आर्याज आर कोऑपरेटिंग विथ आर्याज। इसका मतलब ये है कि भले ही कल्चरल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया होगा, भले ही रेशियल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन इस समय जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो रेशियल कम है, कल्चरल कम है और पॉलिटिकल ज़्यादा है। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि फॉर एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस। इज दैट क्लियर? That's why this battle is important, and if this battle is important, then the river is also important on whose bank this battle was fought. Is that clear? लेटर वैदिक एज में अगर हम आर्यन जियोग्राफी की बात करें, ऋग वैदिक, अर्ली वैदिक हम लोगों ने देखा कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अगर लेटर वैदिक एज में इनके आर्यन इनके जियोग्राफी की बात करें तो ऐसा लगता है कि देयर वाज ईस्टवर्ड माइग्रेशन। ठीक है, इसके बहुत तरह के एविडेंस हैं, लेकिन एक एविडेंस हमारे लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है। एक ब्राह्मण है जिसको कहते हैं सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में दो दोस्तों की कहानी है। ये अपने आप में ही क्वेश्चन हो सकता है, विदेह माथो की एंड अग्नि की। विदेह माथो और अग्नि दोनों साथ साथ पूरब की तरफ जाते हैं। अग्नि मूव्ड फास्टर, बट द पाथ ऑफ अग्नि वाज ब्लॉक्ड बाय अ रिवर दैट इज नोन एज सदानीरा। सदानीरा इज आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न गंडक रिवर। यानी कि सतपथ ब्राह्मण की अगर माने तो लेटर वैदिक में आर्यास कहाँ तक पहुँच चुके थे? गंडक रिवर के बियॉन्ड भी चले गए थे। इसलिए कि अभी डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जब विदेह माथो पहुंचा नदी के किनारे और देखा कि अग्नि का रास्ता इस नदी ने रोक रखा है, तो विदेह माथो ने हेल्प किया अग्नि को नदी को पार करने में, और फिर दोनों दोस्त नदी के उस पार चले गए। अब ये विदेह माथो कौन था? तो माना जाता है कि अर्ली कॉलोनाइजर हो सकता है या आर्यन लीडर हो सकता है, जिन लोगों ने ईस्ट में एक्सपेंशन में रोल प्ले किया। और अग्नि क्या है? तो क्लियरिंग फॉरेस्ट विथ फायर, ये सिंबॉलिक हो सकता है। दैट इज पर्सोनिफाइड फायर इज अग्नि। तो उस ईस्टवर्ड माइग्रेशन के प्रोसेस को यह दिखा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? कौन सा ब्राह्मण है ये? सतपथ ब्राह्मण। सदानीरा कौन सी नदी है? गंडक नदी। और विदेह माथो और अग्नि की स्टोरी कहाँ मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में। और इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट शोज एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन वर्ल्ड, दैट इज व्हाट? ईस्टवर्ड माइग्रेशन। उसी तरह से इस डिजायर था, एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन वर्ल्ड का डिजायर था, इसीलिए कि ऋग वेदा में भी वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज गायत्री मंत्रा। गायत्री मंत्रा इज परहैप्स इन द थर्ड मंडल ऑफ द
ऋग्वेदा। एक बार मंडला कंफर्म हो लीजिएगा। और गायत्री मंत्र जो कि ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट में है, उसका भी मकसद क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन वर्ल्ड। बाद में इसका कोनोटेशन थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो गया, थोड़ा आइडियोलॉजिकल भी हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि शुरू के दिनों में ये कोनोटेशन जियोग्राफिकल रहा होगा, एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन वर्ल्ड, या कुछ कनेक्शन इसका इससे भी रहा होगा। एब्सोल्यूट कोई चीज़ तो होती नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, थर्ड मंडला, यस, थर्ड मंडला में है गायत्री मंत्र। ईस्टवर्ड माइग्रेशन का एक और एविडेंस हमारे पास है कि आउट ऑफ द 4 वेदास वी हैव अथर्व वेदा, और अथर्व वेदा में ऐसा लगता है कि मैजिक, चार्म्स, स्पेल्स, इसकी बातें कही गई हैं, जो कि आमतौर पर नॉन आर्यन लोगों के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स की बात भी कही गई है, जिसके बारे में लोकल कम्युनिटीज़ को जानकारी ज़्यादा होती है। इसलिए कभी कभी अथर्ववेदा को आयुर्वेद के ओरिजिन के तौर पर भी देखते हैं, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा इन अथर्ववेदा। सिंस दिस थिंग्स आर मोर एसोसिएटेड विद द नॉन आर्यन पीपुल, तो ऐसा लगता है कि अथर्ववेदा तक आते आते नॉन आर्यन लोगों के साथ इनका कल्चरल इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गया था, और ये भी एक ईस्टवर्ड माइग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस होगा। इसी प्रोसेस को कभी कभी हम लोग प्रोसेस ऑफ आर्यनाइजेशन भी कहते हैं, कि जिसमें आर्याज नॉन आर्यन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे थे। वैसे तो टर्म आर्यनाइजेशन है, लेकिन कभी यूनिलेटरल प्रोसेस नहीं रहा होगा। अगर आर्याज से लोगों ने सीखा, तो आर्याज भी लोगों से सीख रहे थे। वी हैव जस्ट सीन कि मैजिक, चार्म्स, स्पेल्स एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स, दिस थिंग्स आर सपोज टू हैव नॉन आर्यन ओरिजिन, जो कि अथर्ववेद में दिखाई देते। लेटर वैदिक सोर्सेज में हमें ऐसा लगता है कि आर्याज का जो हैबिटेशन है, गंडक नदी तक तो हो ही गया था, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है? गंगेटिक दोआब, दैट इज लैंड सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स, गंगा एंड जमुना। और लोअर बेसिन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बंगाल का इलाका हो जाएगा, बंगाल वाज नेवर सो आर्यनाइज्ड, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना मिडिल गंगेटिक बेसिन, ईस्टर्न यूपी और बिहार का इलाका, मिडिल गंगेटिक बेसिन, इस इलाके तक आर्याज पहुंच चुके थे। और इन सभी इलाकों से हमको पीजीडब्ल्यू भी मिलता है। पीजीडब्ल्यू मिलता है तो इसका मतलब क्या है? कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मिलता है। अब उन सारे एरियाज को जहां आर्याज रहते थे, आर्याज ने कहना शुरू किया आर्याव्रत। बचपन से हम लोग रटते आए हैं कि इंडिया के 4 नाम, उन 4 नामों में एक आर्याव्रत भी है। याद है आपको कौन कौन से नाम, 4 नाम हम लोग याद करते थे प्राइमरी स्कूल में? ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की नहीं। इंडिया कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, भारत और आर्याव्रत। इसी में से कोई ज़्यादा जानकार होता था तो जोड़ देता था कि एक और नाम है, वो बता दो। नहीं बता पाते तो बताते जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप भी कहा गया है। फिर हम लोग इम्प्रेस्ड हो जाते थे। तो आर्याव्रत का मतलब है लैंड ऑफ द आर्यास। अब गंगा के साथ भी फेमिलियरिटी है, ईस्टर्न रिवर्स के साथ भी फेमिलियरिटी है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ईस्टवर्ड माइग्रेशन एंड आर्यनाइजेशन एंड समथिंग रिलेटेड टू आर्यन जियोग्राफी और वैदिक जियोग्राफी और द लोकेशन in case of both the early Vedic phase and the later Vedic phase. Is this clear everyone? यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए इससे। आइए अब बात करते हैं इनके इकोनॉमिक लाइफ की। और इकोनॉमिक लाइफ में हम लोग पहले बात करेंगे ऋग वैदिक, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग लेटर वैदिक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और शिफ्ट करेंगे हम लोग कंपैरेटिव मैनर में। एक कंपैरिजन भी हम दिमाग में रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि ऋग वैदिक और आर्यन लेटर वैदिक की बात करें हम लोग, एक पैरेलल और एक कंपैरिजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। अगर आपसे पूछा जाए विच सिविलाइजेशन वाज इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड, इट वाज द
इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कि अर्बनाइजेशन के लेवल तक का डेवलपमेंट हुआ था। वैदिक सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन हमें कभी दिखाई नहीं देता, और ना ही मटेरियल रिमेन्स उतने मिलते हैं, ना ही उनके इस लेवल के एक्सटर्नल एक्सचेंज नेटवर्क ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं, ना ही आर्टिफैक्ट्स उस लेवल के मिले हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन अपने एडवांस्ड फॉर्म में भी 6th सेंचुरी बीसी तक नॉन अर्बन रही थी। इट वाज अराउंड 6th सेंचुरी बीसी इन द गंगेटिक बेसिन वी हैव आर्यनाइजेशन। तो अगर एक जनरल स्टेटमेंट देखा जाए तो वैदिक लोग क्या थे, वो रूरल ही रहे, वो अर्बनाइजेशन के लेवल तक नहीं पहुँचे। उन्होंने शहरों को डिस्ट्रॉय तो किया जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन अपने शहर कुछ शायद वो नहीं बसा पाए, या बसा भी पाए तो उनका आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता, उनका लिटरेरी रेफरेंस हमें नहीं मिलता। और अगर उस तरह का कुछ मिलता भी है तो हिस्टोरियंस उसको कभी कभी इंटरपोलेशन मानकर अलग कर देते हैं, इसलिए कि अर्बनाइजेशन तभी होगा जब इकोनॉमी आपकी डाइवर्सिफाई करेगी। और अगर इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं की है, उसके बाद भी अगर अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि अर्बन साइट्स को आप दूसरे तरीके से देख रहे हैं, आप किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, उन कंट्रोवर्सी से हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग आते हैं कंक्रीट और पॉइंट पे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ऋग वैदिक एज में जो इकोनॉमी थी उसके लिए अगर एक वर्ड इस्तेमाल करना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं एग्रो पैस्टोरलिज्म। एग्रो पैस्टोरलिज्म, ऋग वैदिक इकोनॉमी को अगर डिफाइन करना हो एक वर्ड में तो एग्रो पैस्टोरलिज्म। एग्रो पैस्टोरलिज्म वाज आल्सो responsible for the nomadic way of their life, that they kept on moving from one place to another, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि दे वर फेमिलियर विथ एग्रीकल्चर, फेमिलियर विथ एग्रीकल्चर। अगर कहे कि क्या ये एग्रीकल्चर से वाकिफ थे, तो फेमिलियर विथ एग्रीकल्चर था। हमें एक क्रॉप भी मिलता है यवा, जिसको कभी वीट मानते हैं कभी बार्ली मानते हैं। अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो किसकी बात मानेंगे आप, वीट की बात मानेंगे। दोनों ऑप्शन दे दे तो बार्ली पे जाइएगा, बार्ली और वीट, वीट नहीं, बार्ली को माना जाता है कि ये वीट से थोड़ा पहले रहा होगा। कभी कभी ये भी मानते हैं कि यवा वर्ड का इस्तेमाल हर तरह के सीरियल्स के लिए भी हुआ होगा, दैट ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स कॉल्ड यवा। तो एग्रीकल्चर से वाकिफ थे। सिर्फ क्रॉप हमें नहीं पता चलता, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भी वाकिफ थे ये, दैट इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और यहाँ तक कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ऋग वेदा में भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, जैसे PLOUGHING, प्लाविंग, सोइंग, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड विनोइंग, खर पतवार साफ करना जिसे कहते हैं। एक बार विनोइंग की स्पेलिंग चेक कर लेना आप। फिर उसके बाद से अगर हम देखते हैं प्लाविंग है, सोइंग है, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, ये सब, यहाँ तक कि डैम्स का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। और एक डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है। वो डिस्क्रिप्शन ये है कि आर्यास के किसी वाटर चैनल को किसी डीमन ने रोक लिया था। ऋग्वेद में बहुत सारे डीमंस की बात कही गई है जो आर्यास के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। उसी में से एक डीमन था जिसका नाम था वृत्रा, सरपेंट डीमन, सांप था ये, ठीक है ना। और इस सरपेंट डीमन ने आर्यास के किसी वाटर चैनल को रोक लिया था। तो फिर इंद्रा ने इसको मारा, और फिर इंद्रा को क्या कहा गया, वृत्राहन। ये भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। इसका मतलब था कि आर्यास फेस्ड सम डिफिकल्टीज रिलेटेड टू इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर, एंड दैट डिफिकल्टी वाज सॉल्व्ड बाय आर्यास बाय किलिंग द सरपेंट डीमन। हम डिमोनाइज उसको कर देते हैं जिसको अपने जैसा नहीं पाते, या हमारा जो पॉलिटिकल एडवर्सरी होता है। तो बहुत सारे डीमंस जो हमारे सोर्सेज में मेंशन्ड हैं वो एक्चुअली डीमंस नहीं होंगे, वो डिफरेंट लोग रहे होंगे जिनका कल्चर अलग रहा होगा, जिनका इंटरेस्ट अलग रहा होगा। उनके खिलाफ लड़ते समय उनको डीह्यूमनाइज करना एक पॉलिटिकल वेपन हो सकता है, ठीक है ना। तो आर्यास वर फेमिलियर विथ एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा नहीं था।
वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से भी वाकिफ़ थे, इरिगेशन से भी वाकिफ़ थे, ठीक है ना। उसके लिए शायद कुछ स्ट्रगल भी कर रहे थे, जैसे वृत्राहन के किलिंग की बात होती है बाई इंदिरा। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि एग्रो पैस्टोरलिज्म में जो इकोनॉमी का मेन स्टे है, मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी या मेन स्टे ऑफ द सब्सिस्टेंसी कह लीजिए या इकोनॉमी ही कहिए, इकोनॉमी दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन एज कैटल रियरिंग, पशुपालन जिसे कहते हैं। कैटल रियरिंग से ये प्राइमरली इंस्पायर्ड थे, या ये कह लीजिए कि इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग। एग्रीकल्चर इनका सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन था फॉडर प्रोडक्शन के लिए और लिमिटेड क्वांटिटी में फूड प्रोडक्शन के लिए। अब ये कैटल रियरिंग के अलावा हॉर्स भी इनकी लाइफ में था। अगर आपसे पूछे कि इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन था, तो गो फॉर हॉर्स फॉलोड बाय काऊ। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है आपको, बिकॉज ऑफ द रिवरेंशियल एटीट्यूड दैट वी हैव टुवर्ड्स द काउज इन आवर टाइम, इन आवर कल्चर। लेकिन एक तो बात तय है कि इतने पुराने समय में और लिटरेरी सोर्सेज की बेसिस पर, वो भी सोर्सेज जो कि क्या हैं, रिलीजियस हैं, नॉन रिलीजियस आस्पेक्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हिस्टोरियंस ने एक बहुत ही सरल तरीका, आसान तरीका ढूंढा है। दे जस्ट काउंट द नंबर ऑफ रेफरेंसेस फाउंड इन द टेक्स्ट बुक्स। तो जिसका मेंशन जितनी ज़्यादा बार, उसको उतना ही इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। यहाँ पर हॉर्सेस का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बार मिलता है, तो इट सिम्स कि हॉर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन देयर लाइफ, फॉलोड बाय काऊ। काऊ के लिए अघन्या वर्ड का इस्तेमाल उस वक्त भी किया गया है। कौन सा वर्ड? अघन्या, जिसको कि मारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर मिल्क के सोर्स के तौर पे एक वर्ड मिलता है दुहित्री। दुहित्री इज द वर्ड फॉर डॉटर। अब यहाँ पर देखो, इसी को इंडो आर्यन कनेक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर, पर्शियन में कहते हैं दुख्तर, यहाँ कहा गया है दुहित्री। देख रहे हो फोनेटिक सिमिलरिटी। ये जो विलियम जोन्स ने इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की बात की, इसी तरह के वर्ड्स और इनकी सिमिलरिटी के बेसिस पर उसने इन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया है। क्लियर? तो दुहित्री याद रखिए, अघन्या याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन देयर लाइफ याद रखिए, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर एग्रीकल्चरल लाइफ ऐसा हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऐसी हो, यानी कि एग्रो पैस्टोरलिज्म हो और एग्रीकल्चर मेन स्टे ना हो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेन स्टे हो, तो एक चीज़ तो तय है कि लाइफ क्या होगी, नोमैडिक होगी, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन? इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं होगा, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना शुरू नहीं करेगी। तो इनके क्राफ्ट एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी लिमिटेड ही लग रहा है। सारे क्राफ्ट्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनका सबसे प्रेस्टिजियस जो क्राफ्ट एक्टिविटी था, मोस्ट प्रेस्टिजियस मेरे ख्याल से ऐसे लिखते हैं, प्रेस्टिजियस ऐसे लिखते हैं ना, सही है स्पेलिंग? चलिए, वो था चैरियट मेकिंग, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है रथकारा। तो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इज वेरी लिमिटेड and we have the term rathakara for chariot maker, and this craft was supposed to be the most precious craft of the time. उनकी लाइफ में हॉर्स का, उनकी लाइफ में चैरियट का काफ़ी रोल था। एक और एक्सेप्शनल चीज़ यहाँ पर हम लोग क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं। हमें लगता है कि वो कॉपर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। और कॉपर के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेदा में, उसको कहते हैं अयस। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं होगा, क्राफ्ट डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, तो एक्सचेंज नेटवर्क की पोजीशन क्या होगी? सिंपल होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा? बहुत ही सिंपल होगा। और सिंपल एक्सचेंज नेटवर्क को आप सपोर्ट कर सकते हैं किसके साथ? बार्टर के साथ। तो बार्टर सिस्टम फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काउज का इस्तेमाल भी करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। काउज का इस्तेमाल करें या बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करें?
एक चीज़ तो तय है कि इकोनॉमी सिंपल थी, एक्सचेंज नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसलिए कि कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज नेटवर्क को आप बार्टर से या फूड ग्रेन से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको या तो मेटालिक कॉइन्स चाहिए या बुलियन चाहिए। जैसे जैसे इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नेचर भी बदलता चला जाएगा। इसी तरह से हम लोग आज बिट कॉइन्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम तो आज भी है। सो दिस इज अबाउट द ऋग्वैदिक इकोनॉमिक लाइफ। इसका इसेंस क्या है? एग्रो पैस्टोरलिज्म, प्राइमरी रिलायंस अपॉन कैटल रियरिंग, agriculture as an auxiliary or subsidiary activity, knowledge of agriculture, nomadic life, and then very limited craft specialization, very limited diversification, and exchange network too simple to be supported by what? Simply the barter system and the use of cows. Is that clear? आइए अब इकोनॉमिक लाइफ में हम लोग लेटर वैदिक की बात करें। लेटर वैदिक चीज़ में एक चीज़ दिखाई देती है कि आर्यास का ईस्टवार्ड माइग्रेशन होता है। तो नाउ एग्रीकल्चर बिकेम द mainstay of their economic life, naturally combined with domestication of animals. इसी को तो कहते हैं ना रूरल इकोनॉमी. So in the later Vedic time, a rural economy was taking shape in the Gangetic basin. आज भी रूरल सेटलमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्राइमरली एग्रीकल्चरल. अर्बन सेटलमेंट इज व्हाट? आज के सेंसस डेफिनेशन के हिसाब से भी एन अर्बन सेटलमेंट इज अ सेटलमेंट इन विच population density is not less than 400 persons per square kilometer, if I remember it correctly. Total population is not less than 5,000, and more than 75% of the male population engaged in non-agricultural activities. Details are not important, concept is important here, that urban settlements are largely about non-agricultural activities, non-agricultural sections of the society, non-agricultural settlements, isn't it? So if we have agricultural settlements based on domestication of animals and agriculture, we call them रूरल इकोनॉमी. यही रूरल इकोनॉमी बाद में चलकर एक अर्बन इकोनॉमी का बेस तैयार करेगी. जैसे कि न्यूलिथिक और चालकोलिथिक कल्चर्स ने इंडस बेसिन में पहले किया था. हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इट वेरी सून. दैट इज कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन. अराउंड 6th century BC वी हैव अर्बनाइजेशन. उसकी बुनियाद कहाँ पड़ रही थी? उसका फाउंडेशन कब पड़ रहा था? लेटर वैदिक एज में, व्हेन वी हैव एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. और जब ये रूरल इकोनॉमी आएगी तो सेटल्ड लाइफ की भी शुरुआत हो जाएगी कि नहीं? रिलेटिवली सेटल्ड लाइफ. तो नोमेडिज्म से सेटल्ड लाइफ की तरफ, कैटल रियरिंग कंटिन्यूड, बट नाउ एग्रीकल्चर इमर्ज्ड एज द मेन स्टे ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ. एंड देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ व्हाट वी कैन से रूरल इकोनॉमी इन द गंगेटिक बेसिन, मिडिल गंगेटिक बेसिन एंड द दोआब रीजन. और इसी एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा, तो वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग that is known as second urbanization in Indian history, which took place in the Gangetic basin around 6th century BC, when we have Buddha, Mahavira, Buddhism, Jainism, when we have Mahajanpadas. वो बाद का फेज है हमारे लिए. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब चूंकि एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमी के जो बाकी दो सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि क्राफ्ट, और टर्सरी यानी कि ट्रेड और एक्सचेंज नेटवर्क, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट होगा. तो ऋग वैदिक फेज के कंपैरिजन में लेटर वैदिक एज में हमें ग्रेटर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन दिखता है. वी कैन से ग्रेटर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन.
बहुत तरह के नए क्राफ्ट आएंगे, लेकिन हम सबको इग्नोर कर देंगे। हम एक पे फोकस करेंगे, वो क्या है? आयरन क्राफ्ट। यानी कि लेटर वैदिक लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और लेटर वैदिक सोर्सेज में आयरन के लिए श्याम, अयस, श्याम इज ब्लैक, श्याम इज ब्लैक, तो ब्लैक मेटल। तो किस मेटल को ब्लैक मेटल कहा गया है? आयरन को। आयरन का रेफरेंस कब मिलता है? ऋग वैदिक या लेटर वैदिक? लेटर वैदिक। आर्यन को किस नाम से पुकारा गया है? श्याम अयस। श्याम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ब्लैक। एक और वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग ब्लैक होता है, कृष्ण। कृष्ण का भी मतलब ब्लैक होता है। उसी तरह से शुक्ल का मतलब वाइट होता है, श्वेत का मतलब भी वाइट होता है। तो शुक्ल और श्वेत फॉर वाइट, श्याम और कृष्ण फॉर ब्लैक। इज दिस क्लियर? अब एक्सचेंज नेटवर्क में भी थोड़ा सा तो चेंज आना चाहिए। तो एक्सचेंज नेटवर्क में ऐसा है कि माना जाता है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि बलियन या बुलियन का इस्तेमाल होने लगा था। इसका मतलब होता है पीसेस ऑफ प्रीसियस मेटल्स। और हमें लगता है कि कुछ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, निसका एंड सातमाना, ये वर्ड आपने सुना होगा। और ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही पीसेस थे, किसके? प्रीसियस मेटल्स के, जिसका इस्तेमाल एक्सचेंज को यानी कि ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए किया गया होगा। जाहिर सी बात है कि वो इकोनॉमी जिसमें बुलियन का इस्तेमाल हो रहा हो, उस इकोनॉमी से ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी जिसमें सिर्फ बार्टर का इस्तेमाल हो रहा हो या सिर्फ फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल हो रहा हो एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो निसका सातमाना क्या थे? पीसेस ऑफ प्रीसियस मेटल्स। और ये प्रीसियस मेटल्स क्या हो सकते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। अब हमें स्पेसिफिकली नहीं पता लगा पाते कि कौन सा गोल्ड कौन सा सिल्वर। एक कंक्लूजन है ये, ड्रॉन बाय हिस्टोरियंस। सो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द वैदिक पीपल। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें इनके, तो एक चीज़ तो क्लियर है जो कि हम लोग समझते भी हैं कि इकोनॉमिक लाइफ का और सोशल लाइफ का कनेक्शन काफ़ी क्लोज माना जाता है। उन सोसाइटीज़ में जहाँ सब्सिस्टेंस सिंपल था, इकोनॉमी में डाइवर्सिटी नहीं थी, उन सोसाइटीज़ को आमतौर पे इगैलिटेरियन मानते हैं। वहाँ पर सोशल डिवीज़न भी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हंटर्स, सभी हंटर्स हैं तो सभी हंटर्स हैं, फूड गेदरर्स सभी फूड गेदरर्स हैं। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं और एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोड्यूस होता है, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस न सिर्फ क्वांटिटी में एक्सीड कर जाता है हंटिंग या फूड गैदरिंग के सरप्लस से, बल्कि इसकी क्वालिटी भी ऐसी होती है कि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता है। हंटिंग में भी यू कैन प्रोड्यूस सरप्लस, दैट इज इंस्टेड ऑफ किलिंग वन बर्ड यू कैन किल टू बर्ड्स। लेकिन उसको आप कब तक प्रिजर्व करेंगे? आज कंज्यूम करें, नहीं तो अगले या अगले दिन वो खराब हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चरल सरप्लस जब प्रोड्यूस होता है तो सोसाइटीज़ का डिफ्रेंसिएशन होने लगता है, सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन होने लगता है, इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन होने लगता है और सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होती चली जाती। और ये कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा डिग्री की बात होगी। रूरल होगा तो डिग्री कम होगी, अर्बन होगा तो डिग्री ज़्यादा होगी। लेकिन किसी भी केस में जो प्रिमिटिव नोमेडिक लाइफ था वो तो नहीं सस्टेन कर पाएगा। नोमेडिक यायावरी जीवन जिसको हिंदी में कहते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सेटल्ड सोसाइटीज़ में डिफ्रेंसिएशन और डोमिनेशन, ये दो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है और डोमिनेशन शुरू हो जाता है। ये क्लास के बेसिस पर भी होता है और किसी और दूसरी आइडेंटिटी के बेसिस पर भी हो सकता है, जेंडर के बेसिस पर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पर भी हो सकता है, इकोनॉमिक पोजीशन के बेसिस पर भी हो सकता है ना। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ऋग्वैदिक आर्याज हैड बीन क्वाइट कॉन्शियस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस।
while comparing themselves with the people whom they found to be different, like Dasas, Dasyus and Panis. तो अब यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं ए, यानी कि हम लोग वर्ना सिस्टम को लेकर चलते हैं, यानी कि उस डायमेंशन को लेकर चलते हैं जिसका रिलेशन किसके साथ है, सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्राटिफिकेशन, और उसका आइडियोलॉजिकल और मटेरियल जस्टिफिकेशन। ठीक है ना। अगर इस डायमेंशन को लेकर चलें वर्ना सिस्टम को, सोशल में पहला वर्ना सिस्टम किससे रिलेटेड है, सोशल डिफरेंशिएशन एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन एंड द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन, जो भी आप कह लें। तो ऋग्वेदा में जिस तरह के रेफरेंसेस मिलते हैं, ऋग्वैदिक टाइम में जिस तरह के रेफरेंसेस मिलते हैं, ऐसा लगता है कि सोसाइटी वाज लार्जली इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ वो होती हैं जहां माना जाता है कि नेचुरल डिफरेंसेस तो होंगे लोगों में, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस या तो नहीं होंगे या ट्रेसेबल नहीं होंगे। कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब होता है मैन मेड डिफरेंसेस। अब वो मैन मेड डिफरेंसेस चाहे मटेरियल पोजीशन के बेसिस पर हो या आइडियोलॉजिकल पोजीशन के बेसिस पर हो। ठीक है। तो एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर कि सोशल डिफरेंशिएशन ना हो, स्ट्रैटिफिकेशन ना हो, वी कैन इमेजिन अ सोसाइटी दैट वाज लार्जली इगैलिटेरियन। लेकिन ऋग्वैदिक एज के लार्जली इगैलिटेरियन सोसाइटी में भी दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो अपरेंट ट्रेसेस ऑफ मेल डोमिनेशन दिखता है, और दूसरा कॉन्शियसनेस रिलेटेड टू वर्ना। वर्ना का मतलब यहाँ पर है कॉम्प्लेक्शन, कलर जो हमारा होता है। ठीक है। जैसे नॉन आर्यन लोगों के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, शॉर्ट हाइटेड, डार्क स्किन्ड, फ्लैट नोज्ड, कुछ इस तरह से। लेकिन ये डिफरेंसेस चाहे जैसे भी हों, ऋग्वैदिक सोसाइटी को हम क्या मानते हैं, लार्जली इगैलिटेरियन ही मानते हैं। लेकिन अगर पूछे पहला स्टेटमेंट दे कि ऋग्वैदिक सोसाइटी वाज लार्जली इगैलिटेरियन, तो सही है। लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट हो कि देयर वाज नो इंडिकेशन टुवार्ड्स मेल डोमिनेशन, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए कि इस इगैलिटेरियन सोसाइटी में भी हमें मेल डोमिनेशन के ट्रेसेस दिखाई देते हैं। वो कौन से ट्रेसेस हैं हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है ना। और एक और चीज़ दिखाई देती है कि आर्याज अपने आप को दासास, दस्यूस और पानीज, जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, उनसे अपने आप को अलग मानते हुए चलते हैं। फिर क्या हुआ कि ये वो दौर था जब आर्याज की इकोनॉमिक लाइफ में कैटल रियरिंग इम्पॉर्टेंट थी, एग्रीकल्चर सब्सिडरी ऑक्यूपेशन था, जब ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगा, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई और रूरल सेटलमेंट्स का अपीयरेंस होने लगा। तो फिर ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इस सोसाइटी में डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा एंड स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स, वो दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहीं पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पीटी के लिए काम आनी चाहिए। यूपीएससी के पीटी में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, हम उन्हें शायद समझ नहीं पाते, कभी देख नहीं पाते। ये जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या एक करेक्ट है। अगर करेक्ट दोनों हैं तो फिर एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं। देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न से आप फेमिलियर है। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी स्टार्टेड विटनेसिंग सोशल डिफरेंशिएशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और ये हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ। जब एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ की तरफ जाएंगे और ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्ट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा।
जाहिर सी बात है कि कुछ लोग उसमें आगे लीड लेकर चले जाएंगे, तो सोसाइटी क्या हो गई, डिफ्रेंशिएटेड और स्ट्रैटिफाइड हो गई। तो वी कैन से कि ऋग वैदिक सोसाइटी इन द वेरी बिगिनिंग वाज व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, egalitarian society, but with time and with changing nature of their subsistence pattern, that is a shift towards agriculture and erosion of the older tribal norms and values. Usually tribal norms and values are supposed to be egalitarian in their spirit. We have processes related to social differentiation and social stratification, and towards the end of the Rig Vedic time, we find a well differentiated society, not only on material basis but also on the ideological basis, on the basis of Varna system, जो कि इमर्जिंग मटेरियल डिफरेंसेस के आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के रूप में डेवलप किया गया होगा। दैट इज हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। यानी कि डोमिनेशन का कोई भी सिस्टम अगर मटेरियल पोजीशन के बेसिस पर हो तो परमानेंट सिस्टम नहीं हो सकता, उसके लिए आपको आइडियोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, फॉर द सिंपल रीज़न कि मटेरियल फॉर्चून्स आर क्वाइट फ्लक्चुएटिंग। मटेरियल कंडीशन एक जैसे नहीं रहते, लेकिन अगर आपका सोशल स्टेटस सिर्फ मटेरियल कंडीशन के ऊपर बेस्ड हो तो हर दिन हो सकता हो कि वीकली, हो सकता हो कि एनुअली आपके सोशल स्टेटस को अपडेट करना पड़े। समझ गया ना क्यों सोशल स्टेटस को अपडेट करना पड़ेगा? इसलिए कि थ्रू आउट दिस पीरियड आपका इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा नहीं रह सकता। इसलिए बेहतर है कि इस तरह के डिफरेंसेस के लिए कोई आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया जाए कि लेट द मटेरियल फॉर्चून्स फ्लक्चुएट, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी के बेसिस पर आपकी सोशल पोजीशन वही बनी रहेगी जो कि थी। इज दैट क्लियर? शायद इसी तरह से वर्ना सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ होगा। अब वर्ना सिस्टम का पहला रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले के सोर्सेज में हमें 3 सोशल क्लासेस की भी बात मिलती है, लेकिन दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। ऋग्वेदा के 10th मंडला में, 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा, देयर इज अ हिम। Hymns are mantras in praise of the deities compiled in the Rig Veda. So there is a hymn. The hymn is known as creation hymn. क्या कहते हैं उसको? क्रिएशन हिम कहते हैं। क्रिएशन हिम के लिए हिंदी वर्ड है पुरुष सुक्ता। तो अपने आप में ही सवाल बनता है कि पुरुष सुक्ता कहाँ मिलता है, क्रिएशन हिम कहाँ मिलता है? तो इन द 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो इसलिए है कि यहाँ पर हमें एक सैक्रिफाइस का जिक्र मिलता है। दैट सैक्रिफाइस इज नोन एज पुरुष मेधा सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाई उस समय का जो इमर्जिंग गॉड है, क्रिएटर है, जिसको क्रिएटर के तौर पे माना जाता था, तभी ये क्रिएशन हिम भी कहलाता है। उसके लिए मनु वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, उसके लिए प्रजापत वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, उसी के लिए पुरुष वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई वी हैव द पुरुष मेधा सैक्रिफाइस। इसने सैक्रिफाइस किया और किसकी आहुति समझते हो ना, उसने खुद को, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सैक्रिफाइस दैट नॉट ओनली द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्नास बट ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ होल यूनिवर्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड। जैसे उसके ब्रीथ से एयर, जैसे उसके आईज से सन, जैसे उसके फोरहेड से ये पूरा जो स्काई होता है वो कुछ इस तरह से, वैसे ही उसके माउथ से ब्राह्मणाज, उसके आर्म से क्षत्रियाज, उसके थाइस से वैश्याज और उसके फीट से शूद्राज के आने की बात कही गई है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सप्लेनेशन है इमर्जिंग सोशल डिफरेंसेस का, जिसमें कि 4 सोशल ऑर्डर्स या वर्नास के ओरिजिन को नेचर के ओरिजिन के साथ जोड़कर ज़्यादा या ग्रेटर लेजिटिमेसी देने की कोशिश की गई। ठीक है, इसी को 4 फोल्ड डिवीजन का पहला एविडेंस माना जाता है। इससे पहले 4 फोल्ड डिवीजन का एविडेंस हमें
नहीं मिलता, 3 फोल्ड का मिलता है, लेकिन दिस इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। 4 फोल्ड के नाम आपको पता है, ऑक्यूपेशन आपको पता है किसके साथ वो जुड़े हुए थे, तो यहाँ उनको रिपीट करना जरूरत नहीं है। विनो ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज और राजन्याज, वैश्याज और शूद्राज। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, 10th मंडला विथ क्रिएशन हिम और पुरुष सुक्ता references to Purus Medha sacrifice and how this sacrifice is connected with both the origin of the universe as well as the origin of the 4 varnas. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डिफिकल्टी? चल, लेकिन इस सब डिफरेंसेस के बावजूद भी कुछ चीज़ें वर्ना सिस्टम ऋग्वैदिक, अभी हम लोग वर्ना सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक की बात कर रहे हैं, तो माना जाता है कि इट वॉज क्वाइट सिंपल। वर्ना सिस्टम वॉज क्वाइट सिंपल। क्वाइट सिंपल इसलिए था कि नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इसको इम्फेसिस ऐड करने के लिए लिख रहा हूँ, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ बट बेस्ड on occupation, that is karma. Now if something, if your social identity is based on occupation, so theoretically what is the position? You change your occupation and your varna status is also changed. अब प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल पे कितने लोगों ने ऐसा किया उसका तो कभी हमें एम्पिरिकल डेटा मिलता नहीं है। एक एग्जाम्पल, बड़े इलीट एग्जाम्पल है, विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। विश्वामित्र के बारे में आता है कि ही वॉज नॉट अ बॉर्न ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मणहुड एक्वायर किया था। ठीक है, फिर इस तरह के भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग वर्ना के लोग भी थे। जैसे कोई है जो कहता है कि मैं पोएट हूँ और मेरी माँ ये है और हम लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हैं, फिर भी एक ही फैमिली में रहते हैं। तो माना गया है कि वर्ना सिस्टम, even it had originated with differentiation, stratification and domination, whatever be the case, was still quite simple because it was based on occupation and not based on birth. So social identities were not rigidly fixed. Clear? And theoretically speaking, a change in one's occupation was also likely to चेंज वंस सोशल स्टेटस। तो आज आप क्षत्रिय हैं, कल को ब्राह्मण हो जाइए, कौन रोकेगा आपको अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो। यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी भी है और डाउनवर्ड मोबिलिटी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो फर्स्ट 3 वर्नाज हैं, फर्स्ट 3 वर्नाज आपको पता है, नाम लिखने की बोर्ड पे जरूरत नहीं है। उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, उसको कहते हैं द्विजाज। पूछा जा सकता है कि द्विजाज कौन थे? द्विजाज का लिटरल ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता है ट्वाइस बॉर्न, ऐसा जिसकी पैदाइश 2 बार हो। एक बार बायोलॉजिकल बर्थ, दूसरी बार इंडोक्ट्रिनेशन। सो जो फर्स्ट 3 वर्नाज हैं, यानी कि शूद्राज एक्सक्लूडेड, दे हैव बीन कॉल्ड एज द्विजाज and they were entitled to something very special. You must be knowing about samskaras, 16 संस्काराज। ठीक है ना? 16 संस्कारा में एक संस्कार तो आप जानते ही होंगे और कोई दूसरा जाने ना जाने, विवाह इज अ संस्कार और नॉट। मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं कि विवाह के बाद सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है, फिर 15वां है ये और 16वां संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। लेकिन विवाह से पहले भी, यहाँ तक कि बर्थ से पहले, हम संस्कारास को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद होता है कि आने वाली लाइफ के लिए आपको तैयार किया जाए, मेंटली, साइकोलॉजिकली, रिचुअलिस्टिकली, सोशली। शायद इसी वजह से संस्कारास का आइडिया डेवलप हुआ। तो हाउ मेनी संस्कारास आर मेंशन? 16 संस्कारास। इन्हीं 16 संस्कारास में से एक संस्कारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। क्या बता सकते हैं वो संस्कारा कौन है?
उपनयन। उपनयन marks the beginning of formal education. Now, sorry, this beginning of formal education was for the upper three varnas, not for the lower varnas. तो ये किसी न किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहा है। अभी विमेन को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब विमेन को भी इससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी अपर कास्ट के लिए। कास्ट वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत मुनासिब नहीं होगा वर्ण के लिए। अब उपनयन का जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो विथ वियरिंग ऑफ सेक्रेड थ्रेड्स, जिसको जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत कहते हैं। थ्रेड्स वर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, ठीक है, नंबर भी कभी कभी अलग होता है। लेटर वैदिक एज में अगर वर्ना सिस्टम को देखें तो कुछ चेंज होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम क्या हो जाता है, मोर रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स। सिस्टम बिकम्स मोर रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब रिजिड होगा तो कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगा। अब ये रिजिडिटी कहाँ कहाँ आती है, तो केम टू बी बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ का मतलब है कि नाउ यू कैन नॉट चेंज योर ऑक्यूपेशन, योर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन योर बर्थ। तो अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यू कीप ऑन चेंजिंग योर ऑक्यूपेशन, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर सोशल स्टेटस, लेकिन धीरे धीरे ऑक्यूपेशन के चेंज करने पर भी क्या लग जाएगा, रोक लगना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरा ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी, ये भी जुड़ जाएगी। तीसरा आपको पता है मैरिज, इंटरवर्ना मैरिजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज जो साथ में खान पान वाली बात होती है, जिसको कहते हैं कमेंसलिटी। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, कमेंसलिटी। अभी अनटचेबिलिटी नहीं दिखेगी, लेकिन खान पान में डिस्टिंक्शंस होना शुरू हो जाएगा और कुछ अलग तरह के दूसरे तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। इसी में से जब मैरिज रूल्स को ब्रेक किया जाएगा, अब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, तो वी हैव इमरजेंस ऑफ द पीपल हु आर नोन एज वर्ना संकराज। तो लेटर वैदिक डेवलपमेंट में कौन आ जाते हैं, वर्ण शंकराज आते हैं। वर्ण संकर का मतलब होता है मिक्स्ड वर्नाज। मिक्स्ड वर्नाज, मिक्स्ड वर्नाज आते हैं दोनों तरह से। जब भी इंटरवर्ना मैरिजेस होगा, चाहे वो अनुलोम हो चाहे वो प्रतिलोम हो। अनुलोम को कहा जाता है हाइपर गेमी, प्रतिलोम को कहा जाता है हाइपोगेमी। अनुलोमा में मेल इज फ्रॉम रिलेटिवली अपर वर्ना, फीमेल इज फ्रॉम रिलेटिवली लोअर वर्ना। प्रतिलोमा में मेल इज फ्रॉम रिलेटिवली लोअर वर्ना, फीमेल इज फ्रॉम रिलेटिवली अपर वर्ना। इन दोनों को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन ग्रेटर क्रिटिसिज्म इज फॉर प्रतिलोमा, बिकॉज दैट वाज लाइकली टू चैलेंज द मेल डोमिनेशन या सोशल स्टेटस बेस्ड ऑन बीइंग लड़का वाला। आई होप अंडरस्टैंड दिस। लड़का वाला लड़की वाला का कंसेप्ट हमारे कल्चर में चलता है। आज भी ग्रेटर रेसिस्टेंस प्रतिलोमा का है, दोनों का रेसिस्टेंस है, लेकिन ग्रेटर रेसिस्टेंस प्रतिलोमा। तो जब मैरिज से रिलेटेड आप रिजिड रूल बना देंगे तो उनका वायलेशन होगा। वायलेशन के दो फॉर्म्स होंगे, तो फिर मिक्स्ड वर्नाज उभरेंगे, यानी कि उनके प्रोजेनीज को या वायलेटर्स को वो सोशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा जो सोशल स्टेटस उनके पेरेंट्स का था, ठीक है ना। इसी तरह के लोगों को क्या कहा गया, वर्ण शंकर कहा गया। ये लेटर वैदिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला डायमेंशन क्या है कि वर्ना सिस्टम बिकेम मोर रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स। दूसरा डेवलपमेंट क्या है कि वर्ना सिस्टम नाउ वाज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ द क्लास नोन एज वर्ण शंकराज। इज दैट क्लियर। लेटर वैदिक एज में कुछ और चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गोत्रा सिस्टम। अपीयरेंस तो यहाँ हो ही जाता है, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें लेटर वैदिक में आने लगती हैं। गोत्रा सिस्टम आपको पता है कि मैरिज रिलेशन बिटवीन टू
persons having a common ancestor came to be prohibited. गोत्रा सिस्टम हमारे आज के हिंदू मैरिज एक्ट में भी एक्सेप्ट किया गया है, सिर्फ डिग्री को यानी कि जनरेशन को थोड़ा कम कर दिया गया है. जो सिचुएशन है मेरे ख्याल से उसके हिसाब से नाउ 5 डिग्रीज फ्रॉम फादर साइड एंड 3 डिग्रीज फ्रॉम मदर साइड, दैट इज 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड एंड 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड. इफ देर इज एनी कॉमन एंसेस्टर, मैरिज इज सपोज टू बी नल एंड वॉइड. ठीक है, दैट इज सी कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चर. ऐसे लोगों को भाई बहन मान लिया गया. फिर उसी तरह से इसी टाइम में हमें यह भी देखने लगता है जिसको कहते हैं आश्रमा सिस्टम. आपको पता है 4 आश्रमास, ठीक है, ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यास. इसी समय में हमें इसकी भी चीज़ें दिखने लगती हैं जिसको कहते हैं पुरुषार्थास, यानी कि लाइफ गोल्स. अर्था, धर्मा, पहले धर्मा फिर अर्था, कामा एंड मोक्षा. इस तरह की चीज़ें भी हमें दिखाई देने लगती. ठीक है, एक और चीज़ दिखाई देने लगती है जो कि हम लोगों ने अभी बात नहीं की है. अभी वर्ना सिस्टम की ही बात कर रहे थे, जेंडर की बात नहीं कर रहे थे. वो है डिक्लाइनिंग पोजीशन ऑफ वीमेन. तो आइए अब दूसरे डायमेंशन. सोशल में पहला डायमेंशन क्या था? वर्ना. नाउ द सेकंड डायमेंशन इज स्टेटस ऑफ वीमेन. अगर ऋग्वेद की बात करें या ऋग्वैदिक टाइम की बात करें स्टेटस ऑफ वीमेन को लेकर, तो वी हैव मेल डोमिनेशन. उसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं. कहाँ कहाँ ट्रेसेस मिलते हैं? तो जैसे प्रेयर्स जो हो रहे हैं उनके, प्रेयर्स फॉर ब्रेव सन्स, नॉट फॉर द डॉटर्स. ठीक है ना? उसी तरह से वी हैव फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू फीमेल स्लेव्स कॉल्ड दासीज. उसी तरह से जो वैदिक देवता हैं, यानी कि वैदिक पैंथियोन, रिलीजियस पैंथियोन, डोमिनेटेड बाय मेल डेइटीज, dominated by male deities. फीमेल डेइटीज हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि डोमिनेशन किसका है? मेल डेइटीज का है. उसी तरह से कभी कभी कुछ इंद्रा एंड उषा, ये कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है. और इंद्रा उषा का कन्फ्लिक्ट जिस तरह से मेंशन्ड है, ऐसा लगता है कि देयर वर सम एट्रोसिटीज ऑल्सो कमिटेड इफ रिलीजन observes some social customs and traditions. Religion may be reflection of what we, religious beliefs and religious mythology may reflect some social realities also. तो इंदिरा ने जिस तरह से उषा को ट्रीट किया है, उससे लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा सा निगेटिव एटीट्यूड रहा होगा. तो ये क्या बता रहा है कि मेल डोमिनेशन था. लेकिन अच्छा, एक चीज और बता रहा है कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, हेड ऑफ द फैमिली, वो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था, यानी कि पैट्रियार्की थी. मैट्रियार्की नहीं दिख रही है, पैट्रियार्की. लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सिचुएशन था वीमेन का, वो क्या था? बेहतर था. बेहतर इसलिए था कि उनका डोमेस्टिक रिचुअल से लेकर पब्लिक रिचुअल्स, डोमेस्टिक एंड पब्लिक रिचुअल्स में पार्टिसिपेशन था. पब्लिक रिचुअल्स में पार्टिसिपेशन. दूसरा, उनका एजुकेशनल राइट. इस पर अभी कोई आंच नहीं आई थी. एंड वी हैव स्कॉलर वीमेन हु इवन कंपोज्ड ऋग्वैदिक हिम्स एंड प्रेयर्स. आपने कुछ लोगों का नाम सुना होगा, ठीक है ना, जैसे अपाला हैं, घोषा हैं, विश्वावरा हैं. ये वीमेन है जिनको कि ऋग्वैदिक हिम्स को क्रिएट करने का भी क्रेडिट दिया जाता है. तो डिस्पाइट ट्रेसेस ऑफ मेल डोमिनेशन वी हैव बेटर पोजीशन ऑफ वीमेन. ठीक है ना? और सिर्फ पार्टिसिपेशन रिचुअल्स नहीं है, एजुकेशनल राइट्स नहीं है, बल्कि इनको अभी डिसीजन मेकिंग में भी रोल है.
अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वीमेन को लेकर कोई निगेटिव सेंटिमेंट नहीं दिखता। दैट इज द पोजिशन इन द ऋग वैदिक टाइम, ठीक है ना। लेटर वैदिक टाइम में हमें कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। उसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक कॉमन लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, इविल्स की, और उनके बेसिस पर भी हम समझ सकते हैं दोनों ही फेज में और सब्सिक्वेंट फेजेस में भी, ठीक है। जैसे अगर एक लिस्ट बनाई जाए उन इविल्स की, तो एक है जैसे निगेटिव एटीट्यूड, दूसरा हो सकता है इन्फेंटिसाइड, तीसरा हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। याद कीजिए मैंने आपको क्लास में भी बनवाया था ये। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ? तो हर चीज़ जो हम सोसाइटी से लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड केयर, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि प्रॉपर्टी। चौथी चीज़ हो सकती है जेंडर सेग्रीगेशन। पांचवी चीज़ हो सकती है चाइल्ड मैरिज। छठी चीज़ हो सकती है पॉलीजिनी, that is marrying more than one women। नेक्स्ट चीज हो सकती है डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम। पर्दा की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो सकती है। किसी को घर में अगर आप कन्फाइन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पर्दा। स्पेशल ड्रेस पहनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पर्दा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कल्चरली सेंसिटिव मैटर हो सकता है ये, तो कुछ ज़्यादा बात हम लोगों को करने की जरूरत है नहीं। तो पॉलीगेमी, डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, ठीक है। स्टेटस इन द फैमिली, फैमिली ऑफ हस्बैंड, देन स्टेटस ऑफ विडोज, ठीक है, सती। ये कुछ कॉमन इविल्स हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में इन्फेंटिसाइड अभी भी नहीं है, ठीक है ना। लेटर वैदिक की बात हो रही है, इन्फेंटिसाइड अभी भी नहीं है, सती अभी भी नहीं है, लेकिन बाकी सारी बुराइयां, ठीक है ना। अब यहां तक तो हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गया। विडो में एक प्रैक्टिस होता था जिसको कहते थे नियोगा। नियोगा को अब काली ब्रज्या माना जाने लगा, मतलब कि अब ये उतना हेल्दी ट्रेंड नहीं है। नियोगा के प्रैक्टिस में एक विडो डिसीज्ड हस्बैंड के नियरेस्ट मेल रिलेटिव के साथ कोहैबिट करके चाइल्ड बर्थ कर सकती थी। इट वाज अकिन टू विडो रीमैरिज, कुछ लोग इस तरह से मानते हैं। तो निगेटिव एटीट्यूड भी दिखने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखने लगता है, ये भी दिखने लगता है, चाइल्ड मैरिज भी दिखने लगता है, मैरिज बिफोर प्यूबर्टी नॉर्म बनते चला जाता है, पॉलीजिनी के केसेस और पॉलीएंड्री के केसेस कम होते चले जाते हैं। अब ये डाउरी भी क्या है? आज भी लोग बहुत सारा डाउरी लेकर बोलते हैं कि हम डाउरी नहीं लिए हैं, तो एक अलग मसला है, बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है यहाँ पर भी। फैमिली में भी स्टेटस कोई बहुत रेस्पेक्टेबल धीरे धीरे नहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन अभी भी जो वर्स्ट इविल्स हैं, इन्फेंटिसाइड एंड सती, ये बहुत बाद में डेवलप होंगे, इसके ट्रेसेस हमें देखने को नहीं मिलते। इज दैट क्लियर? उसके बाद से अब सोशल स्टेटस में मैंने कहा था कि एक और डायमेंशन होगा अदर्स का, लेकिन अदर्स की बात हम लोग कर चुके हैं। अदर्स में हमें दासास, दस्यूज और पानीज की ही बात करनी थी, जो कि हम लोगों ने किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कर लिया है। हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि दासी होती थी, फीमेल स्लेव्स होती थी, और स्लेवरी वाज नोन। एक चीज़ जान लीजिए कि वैदिक लिटरेचर में स्लेवरी वाज known and female slaves were donated along with cattle to the priestly classes on the occasions of socio-cultural importance or significance। ठीक है ना। उसके बाद से हमें दिखता है पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इधर ऋग वैदिक कर लेते हैं और इधर लेटर वैदिक कर लेते हैं। ये मॉडल लिखने में तो बहुत मैच्योर नहीं माना जाएगा इस लेवल पर, लेकिन क्योंकि हमें पीटी के लिए रिवाइज करना है, तो चीज़ें हम बहुत आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऋग वैदिक पॉलिटी की बात करें तो इसको माना जाता है कि इट वाज
स्टेटलेस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या थे, स्टेटलेस का मतलब है कि यहाँ पर ट्राइबल पॉलिटी, कौन सी पॉलिटी, ट्राइबल पॉलिटी, ये पहला स्टेटलेस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्टेट, स्टेट फॉर्मेशन हो जाता है, और इसका रेफरेंस हमें मिलता है जैसे जना एंड जना टू जनपदा, इसको कह सकते हैं जना टू जनपद, जनपद और राष्ट्र, विच आर एक्सेप्टेड एज ए स्मॉलर टेरिटोरियल स्टेट्स। उसी तरह से ट्राइबल पॉलिटी जो दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये सॉरी मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा, तो कह सकते हैं कि ग्रीक वैदिक सोसाइटी वाज स्टेटलेस, द सोसाइटी इन द लेटर वैदिक टाइम बिकेम स्टेट सोसाइटी विथ स्टेट फॉर्मेशन इंडिकेटेड बाय ट्रांजिशन फ्रॉम जना टू जनपद। नाउ द सेकेंड डायमेंशन इज कि political system of the Rig Vedic time can be seen as what, tribal, but here we have territorial. यहाँ पर we have CHIEF DMS chiefdoms, यहाँ पर we have kingdoms, यानी कि टेरिटोरियल स्टेट्स, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर वी हैव लैक ऑफ टेरिटोरियल आइडेंटिटीज, लोग ट्राइब के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, टेरिटरी के साथ नहीं करेंगे आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल आइडेंटिटीज, और कभी कभी नए आइडेंटिटीज भी डेवलप होंगे टेरिटरी के बेसिस पर, एंड न्यू आइडेंटिटीज बाय मर्जर ऑफ ट्राइब्स। जैसे भरत का नाम सुना था हम लोगों ने, और पुरु, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कुरु, जिनका एरिया को क्या कहा जाएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पांचवें में हेरिडेटरी टेंडेंसीज नहीं होंगी। यहाँ पर क्या होगा, हेरिडेटरी टेंडेंसीज मिसिंग कह सकते हैं, या रिलेटिवली नहीं होंगे। यहाँ पर पांचवें में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ हेरिडेटरी टेंडेंसीज आ जाएंगी। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, जैसे 12 रत्निन्स आ जाएंगे, राजा किंग में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको भागा का, जैसे गिफ्ट कहते थे ना, जैसे बाली का फॉर्म चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। इस तरह से कुछ मेजर चेंजेस हैं, मेरे ख्याल से आप इसको रिलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस मच अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ। ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू के दिनों में राजन का होगा सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब, लीडिंग द ट्राइब इन द बैटल्स। लेटर ऑन टेरिटरी एंड टेरिटोरियल एक्विजिशन भी उसका मकसद होने लगेगा, प्लस जो वर्ना सिस्टम अपहोल्ड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दे दी जाएगी कि वर्ना सिस्टम का प्रोटेक्टर कौन होगा, किंग होगा, प्लस किंग ब्राह्मणों का रेस्पेक्ट भी करेगा, ब्राह्मणिकल ऑर्डर का रेस्पेक्ट करेगा। अब ये सिचुएशन ही और ये पोजीशन ही लेजिटिमेसी का काम करती है बहुत दिनों तक इंडिया में। मौर्याज थोड़े से इनसे अलग हो जाते हैं कि मौर्याज ने रिचुअल्स की बेसिस पर अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश नहीं की, हालांकि वर्ना सिस्टम को अपहोल्ड उन्होंने भी किया। इज दैट क्लियर? तो चलिए, दिस वाज द वैदिक सिविलाइजेशन इन बोथ ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक। टुमारो वी विल फाइंड सम न्यू थीम फॉर अस। अब तक हम लोग कंटिन्यूटी में चले हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अर्बनाइजेशन मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। महाजनपदास भी बहुत फैक्चुअल है, उसका रिवीजन आप खुद से कर लेंगे। हम लोग थोड़े से कल्चरल थीम्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे रिलीजन हमने छोड़ रखा है, उसके कुछ पार्ट्स कवर कर लेंगे, जैसे इंडस एंड वैदिक रिलीजन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस तरफ से रिलीजन का एक अब तक कवर कर लेते हैं।
लिटरेचर का कुछ पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, देखेंगे जो भी थीम होगा कल अब कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग चुन लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीजन एंड कल्चर। कुछ कल्चरल थीम्स भी करते चले ताकि हमारे रिवीजन में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। अदरवाइज तो टेंडेंसी ये है कि पहले इनको ख़त्म कर लेते हैं फिर कल्चरल थीम्स की तरफ आते हैं, लेकिन हम लोग कल्चरल थीम्स को मिक्स करेंगे इसके साथ। इज़ दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस कोऑपरेशन।